Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a newly added topic, that is surface tension in the subject fluid mechanics for GATE 2021. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me and on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without further ado, let's get started with the lecture. So student, as we studied in the lower standard that the surface tension is the property of the liquid by which the liquid tends to minimize its own area. So this is all about the definition of the surface tension. Okay. Now before going to understand the whole concept of the surface tension, first we understand the two type of forces which is acting on the molecules. Let's discuss it. And what was that? That forces are cohesive force and the adhesive force. Okay. So what is cohesive force? Cohesive force is the force which is acting between the two similar type of molecules. The force of attraction acting between the two same type of molecules. For example, we added one molecules of water to the another molecules of water, and then we get the water molecules only, and similarly we get the water molecules of or huge amount of water molecules. Okay. Similarly, if we add mercury to mercury, then we get the mercury. Okay. So this is the all about the cohesive force. And if we talk about the adhesive force is the force of attraction acting between the two different type of molecules. For example, when we painted a wall with some type of paint, so what will happen? Paint has some type of molecules and wall has some type of molecules. Both are stick together by the force of attraction, that is adhesive force. Okay. If we talk about the another example, that is if we talk about the another example like one glass of water, in which if we empty the glass from the water, what will happen? The some amount of water bubbles are still present on the wall of the glass, and this is because of the adhesive force acting between the wall of the glass and the water bubbles. Okay. So this is all about the adhesive force and cohesive force. These force are very important, play very important role in the surface tension concept or in the capillary concept, which we are going to study in this lecture. So now let's understand the concept of surface tension with this diagram. What will happen in this diagram? We consider a bath tank, a tank which contain a water bath. Okay. So I mark a water molecules 1, 2 and 3. As you see that the first water molecules is totally dipped in the water bath. Okay. Or you can say that it is present at the bottom of the tank. Okay. And second molecules is present little bit above the one molecules and also below the surface of the water. And the third molecules which I consider is present on the layer, or you can say that at the top surface of the water layer. Okay. So first we understand which molecules are stable and which molecules are not stable. So you know that the molecules, the force of attraction, the acting between the molecules in the water, that is intermolecular forces, acting in the fluid or any liquid, which is intermolecular forces. So you can see that if the some amount of force which is acting intermolecular force acting upward, some amount of intermolecular force acting downward, some amount in left side, in some amount of in right side. ठीक है. तो वो सारे जो molecules हैं वो round shape molecules बना रहा है, और साथ में ही क्या हो रहा है? What will happen with the molecules? That it becomes all the net force of this molecules becomes zero, because all the intermolecular forces is cancelled out by the opposite one. ठीक है. तो this molecules has
net force, what was the net force of this molecules is 0. That's why this molecules is said to be a stable molecules. ठीक है, okay, this is become a stable molecules because the net force of this molecules in the water bath is 0. That's why we call it as a stable molecules. Okay, now we talk about the second molecules. What will happen with second molecules? The same thing is happen with the second molecules, that all the forces which is acting in the 360 degree 360 area, that all the forces are cancelled out with each other, and the net force of second molecules also become what? It becomes 0. That therefore this molecules is also a stable molecule. ठीक है. Now if we talk about the third molecules, what you have seen that these molecules are partially dipped in the water bath and partially present on the partially present on the air, but the air has no molecules. तो it means ये जो है partially इस water bath में present है. तो इसकी जो जितने भी जो forces act हो रहे हैं वो कहाँ act कर रहे हैं? The all the forces, intermolecular force is acting in the direction of downward. तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस को, फोर्सेस को कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास ऊपर कोई फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वाटर बाथ ऊपर अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वो नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0, और फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, so it means these molecules are not stable, or you can say that unstable. Okay, this molecules is unstable. So what happened with the instability and stability of the molecules? that जो stable है वो हमेशा stable ही रहना चाहता है, और जो unstable molecule होता है वो स्टेबल होना चाहता है. या आप रियल लाइफ में देखिए, जो अगर कोई स्टेबल है वो स्टेबल ही रहना चाहता है, और जो अनस्टेबल है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वन मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है, सेकेंड मॉलिक्यूल स्टेबल है, थर्ड मॉलिक्यूल से अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा. तो वो क्या डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, वो उसको नीचे नहीं आने देंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से जो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी. टेंशन क्रिएट एक टाइप का स्ट्रेच माहौल सा, मतलब स्ट्रेचिंग वर्क, स्ट्रेच मतलब इस एक टाइप का टेंशन क्रिएट हो जाएगी. उस टेंशन को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ पाते, और जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नहीं जा पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है? कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन से एक्ट कर रहे हैं, वो है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्ले रोल करता है वो है कौन सा? कोहेसिव फोर्स. ठीक है, अगर बाय फॉर्मूला हम इसको कन्वर्ट करें तो सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द सरफेस टेंशन विद अ सिग्मा टर्म value is equal to force per unit per length, and its unit is Newton per meter, or in CGS unit its unit is dyne per centimeter. Okay, so its unit is dyne per centimeter. Another term is also present, that the what is surface energy. What is surface energy? Surface energy क्या होती है? जितना हमें वर्क करना पड़ता है एक स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, स्ट्रेस को, सरफेस टेंशन को मेंटेन करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उसको हम करते हैं सरफेस एनर्जी. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डेल्टा एल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क अपॉन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, जिसकी यूनिट हो जाएगी क्या? जूल पर मीटर स्क्वायर में. ये हमारा हो जाएगा एनर्जी, सरफेस एनर्जी. ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा सरफेस एनर्जी। तो ये पूरी कंसेप्ट था सरफेस टेंशन का। नाउ वी टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस टेंशन। दैट सरफेस टेंशन इज द स्केलर क्वांटिटी, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड it depends on the intermolecular force and depends upon the impurity added to it। अब impurities की क्या कंसेप्ट है, अगर impurities जो है ये इनसॉल्युबल है तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है सरफेस टेंशन के साथ। अगर इम्प्योरिटीज जो अगर इनसॉल्युबल है तो अभी तक ये प्रिडिक्ट नहीं किया गया है टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इट मे बी इंक्रीज इट मे बी डिक्रीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द टू फीचर्स इन द सरफेस टेंशन, दैट इज कॉन्टैक्ट एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा and the magnitude of the surface tension which is sigma। ठीक है, अब for liquid the surface tension is decreases with the increase in temperature। within the liquid the surface tension decreases with increase in temperature, or at the critical temperature surface tension becomes zero। surface tension becomes zero at critical temperature। okay, the another thing is that the liquid droplet is, if we talk about the liquid droplet, तो droplets क्या करते हैं, अपने आप को क्या मिनिमाइज कर अपना मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। तो मिनिमम सरफेस एरिया कौन से शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। तो इसलिए हमारी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप में होती है। तो ड्रॉपलेट्स जो है वो एक वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ड्यू टू सरफेस टेंशन द प्रेशर चेंज अक्रॉस द कर्व इंटरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट। जो कर्व सरफेस पे जो इंटरफेस पे है एक तरीके से सरफेस प्रेशर चेंज एग्जिस्ट करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, नाउ here I mentioned some data that the at the air water interface the surface tension is equal to 0.073 Newton per meter, and if we talk about the water glass contact angle, it is 0। water glass contact area, that is contact angle is theta is equal to 0। if we talk about the air and mercury, the surface tension at interface is 0.480 Newton per meter, and water glass contact angle in the case of mercury that is 130। we consider 130। okay, now come to the concept of droplet and jet। we come to the concept of droplet and jet, that is what is droplet and how droplet is formed and how surface tension play a role in the concept of droplets। okay, now come to the concept of droplet and jet। okay, so first when we consider or we separate a droplets from the liquid bulk, what will happen, there are some amount of net inward force acting due to the surface tension on the droplets। so what will happen due to the surface tension, the droplet surface is start contracting towards the inlet towards the inside the droplet, so that results to increase in the internal pressure in the droplets। so, if we continue the same process, what will happen, the inward force is balanced by the internal pressure। the inward force is balanced by the internal pressure, and when the both the forces are balanced, the droplet form a spherical shape which has minimum surface area। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से। और डेफिनेशन क्या कहता था कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि टेंस करता है, मिनिमाइज करता है, अपना ओन सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। तो मिनिमम सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है कौन से शेप में, स्फेरिकल शेप में। तो ड्रॉपलेट्स के केस में क्या हुआ कि
जो हमारा जो ड्रॉपलेट है वो हमने सेपरेट किया अगर बल्क से, तो उसमें इनवर्ड फोर्स एक तरीके का एक्ट कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो जो उसकी वजह से जो इंक्रीज करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, तो हमारे पास इंटरनल फोर्स प्रेशर जनरेट होगा जो कि इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा और बैलेंस करने की वजह से जो है जो ड्रॉपलेट जो है एक स्फेरिकल शेप ले लेगा, जिसको जो स्फेरिकल शेप है वो उसमें मिनिमम सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा ड्रॉपलेट की कंसेप्ट हो गया। अगर हम बात करें जेट की केस में, तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, अब जो मैं आपको कंसीडर कराने जा रही हूँ कि ये सारे कंसेप्ट होते हैं, मैं डायरेक्ट प्रेशर जो प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के डेफिनेशन बता रही हूँ, क्योंकि जो आपको इस पे डेरिवेशन आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुकी हैं, तो मैं डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दैट इज प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट क्या होती है, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। ओके, another formula is pressure intensity inside the soap bubble। soap bubble में भी surface tension exist करता है, तो उस केस में pressure intensity क्या होगी, 4 times the sigma upon R। यहाँ R क्या है, soap bubble का radius, ठीक है। now the pressure intensity inside the liquid jet, in that case the pressure intensity is equal to sigma upon R। ये जो R है वो है जेट का रेडियस है, जेट का पोर्शन का रेडियस है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गया। अब प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे द साइज ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीजेस। प्रेशर इंटेंसिटी इज डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ droplet is increases। okay, now come to the another topic, that is capillary and the capillary। okay, so this is all about the concept of surface tension, and now come to the concept of capillary। if you have any doubt related to the surface tension, you can comment down in the description box। okay, now come to the capillary concept। in the कैपिलरी, देखिए मैंने आपको एकदम देखिए फ्लो डायग्राम में मैंने आपको समझाया है। ड्रॉपलेट की कंसेप्ट मैंने एक एक स्टेप में आपको बताया है। ये आप सेंटेंस के तरह भी लिख सकते हैं और ये आपको ऐसे रिमेंबर करने में इजी रहता है। तो इस तरीके से ही शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। मैंने पूरी एक सिंगल बोर्ड में पूरा सरफेस टेंशन में आपको समझा दूंगी विथ कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे समझा रही हूँ, देखिए कैपिलरी जो होता है, अब कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी जो बेसिकली हम राइज और फॉल टाइप ऑफ लिक्विड इनसाइड दी एनी बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, अगर फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन द एडिसिव फोर्स होता है, व्हेन दिस फोर्स ऑफ एडिसिव कोहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन द एडिसिव फोर्स। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ, इसलिए ताकि आप हिंदी वाले भी समझ लें, इंग्लिश वाले भी समझ लें। ठीक है, व्हेन द फोर्स कोहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन द एडिसिव फोर्स, व्हाट विल हैपन, द लिक्विड वेट द सरफेस। क्या हो रहा है, जब कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से कम है तो लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट कर देता है। तो क्या होता है, लिक्विड टेंड्स टू राइज अप द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, जब लिक्विड जो है सरफेस को वेट कर देता है, जो लिक्विड जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पे थोड़ा क्या लिक्विड का राइज अप हो जाता है। ठीक है, जहाँ थोड़ी राइज अप हो जाती है। अब जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है लिक्विड का किससे, शेप ऑफ लिक्विड एट द कांटेक्ट ऑफ सरफेस इज इन द कॉन्केव अपवर्ड। देखिए इसको कैपिलरी इफेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टैंक है, उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये वाटर फिलअप है, ये मैंने कैपिलरी इंसर्ट की, इस टाइप से कैपिलरी इंसर्ट की, तो क्या हुआ, जो वाटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा, और अगर कैपिलरी जो है, अगर कोहेसिव फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है एडिसिव फोर्स के, तो ये किस टाइप का शेप बनाएगा, इस टाइप का कॉन्केव शेप बनाएगा। ठीक है, और ये कॉन्केव शेप बनाने की वजह से यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो थीटा होगा और वो स्मॉलर देन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री होगा। अगर हम इसका अपोजिट देखें कि कैपिलरी राइज, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया किसका, कैपिलरी राइज का।
राइज का कंसेप्ट बना। अब अगर हम बात करें कैपिलरी डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम वाटर के बजाय हम क्या ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं। तो मरकरी के केस में ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कैपिलरी डिप की तो ये इस टाइप का शेप क्रिएट करेगा और इसका जो एंगल ऑफ थीटा होगा वो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इन केस ऑफ कैपिलरी राइज द angle of contact is 90 degree, smaller than 90 degree, but in the case of depression the angle of contact is greater than 90 degree. Okay, so here we represent H is the level of liquid rise up. यहाँ जितना liquid rise up होता है ना, उसको हम क्या दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। तो क्वेश्चंस में आपको हमेशा यही दिखा रहेगा कि कैपिलरी व्हाट इज वो कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट। ओके, इस टाइप से। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा, नाउ वी डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ द कैपिलरी राइज, दैट इज 2 सिग्मा cos थीटा upon S gamma W into R. Here the weight of S is the specific density and gamma W is the specific weight of the fluid and R is the radius. Okay, so in case of capillary effect or capillary rise, the formula of the liquid level or capillary effect is H is equal to 2 sigma cos theta upon S R gamma W और R। ठीक है, और इफ वी कंसीडर द थीटा फॉर ग्लास वाटर के लिए हमने थीटा क्या देखा था, यहाँ पे ग्लास वाटर के केस में थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। इन दैट केस H इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन गामा W इंटू R हो जाएगा। ठीक, now come to the annulus tube. In case of annulus tube, what will be the capillary rise formula, that is 2 sigma cos theta. In the annulus case we have two radius, okay, radius of the tube, that is R0, and outer radius of the outer tube, and Ri is the radius of inner tube. So in that case the formula become H is equal to 2 sigma cos theta upon R0 minus Ri into S into gamma W. Okay, so the gamma W is the specific weight of the water. Okay, now another case is the when we have a liquid of 2 density, like 2 डेंसिटी मीन्स जो लिक्विड है, पहले हमने मरकरी डाला, उसके ऊपर एक नॉर्मल वाटर लिक्विड इंसर्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी हैवी हो गई और हमारा वाटर की डेंसिटी लाइट हो गई। तो इन दैट केस में क्या होगा कि मरकरी के केस में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन के केस कैपिलरी डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। इन दैट केस द फॉर्मूला ऑफ H इज इक्वल टू 2 sigma cos theta upon R into gamma W S1 minus S2. S1 is the mercury density and S2 is the any other liquid density. Okay, in that case the depression is come in the negative value. It will be a negative value. Okay, now come to the last type of case, that is if the 2 vertical plane is inserted in the bath except any tube, that in that case what will happen, we have a particular amount of thickness. So the thickness of the 2 plates or separation thickness, not thickness, 2 plates are separated with a particular amount of distance, then that distance is we consider the as a T, its thickness. In that case the value of H is equal to 2 sigma cos theta upon S R gamma W into T. Instead of R we consider T, which is the distance between the 2 plates. So this is all about the capillary concept. अब हम जो है ये surface tension देख लिया, capillary effect देख लिया, अब हम जाते हैं numericals की तरफ। ठीक है, so now we solve the numericals on the same concept. So the question is, first question is all about the calculating the estimating. So now
So now we consider, so now we solve some numerical on the same concept. So first question is that we in the question given that the sigma value for air water interface is given, that is 0.073 Newton per meter, and we have to estimate the pressure difference. We have to estimate the pressure difference inside and outside the air bubble of diameter. Air bubble का दिखाना है, diameter given है कितना 0.01 mm. So we have to calculate the pressure difference. Okay, so for that we know that we are consider in the case of air bubble we have only one surface. Okay, in that case we calculate pressure difference with the formula of 2 sigma upon r. ठीक है, तो first of all we have to convert this diameter into a meter, that is di is equal to 0.01 into 10 to power minus 3 मीटर. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 2 इंटू, अब यहाँ हमें डायमीटर गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू सिग्मा अपॉन डी, तो हमारे पास वैल्यू होगी 4 इंटू 0.073 अपॉन 0.01 into 10 to power minus 3. So after calculating this we get the answer, that is 29200 Newton per meter square, and if we write this Newton meter square in kilopascal it will become 29.2 kilopascal. So here from this formula we get the pressure difference from the surface tension and the diameter is 29.2 kilopascal. Okay, सिंपल था, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, बस फॉर्मूला बेस्ड था. आपको याद रखना है कौन से फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन और प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल is about the capillary rise and capillary depression. Okay, the question has given that we have to calculate the we have to calculate the capillary effect. Okay, and the given data is, what was the given, and we have to given that the capillary is immersed into a water and mercury. 2 केस है, एक वाटर में इमर्ज कर रहे हैं हम और दूसरा जो है हम मरकरी में इमर्ज कर रहे हैं. ठीक है, गिवन हमारे पास डाटा है कि एट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड दे रखा है हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का सरफेस टेंशन जो गिवन है वो है 0.073 न्यूटन पर मीटर, और जो सरफेस और जो मरकरी का सरफेस टेंशन दे रखा है, मरकरी का दे रखा है वो है 0.51 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, ये दे रखा है. अब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास क्या है, 0 है इन केस ऑफ वाटर, और इन केस ऑफ मरकरी में हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दे रखा है, इन केस ऑफ मरकरी में हमारे पास 130 डिग्री दे रखा है. ठीक, और जो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है वो 998 kg पर मीटर क्यूब गिवन है. ठीक, ये हमें गिवन है. तो सबसे पहले, और हमारे पास डायामीटर भी गिवन है. क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 4 mm, तो हम इसको 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डाया को. ठीक, अब हमें पता है कि हमें h जो वैल्यू होती है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन s गामा w इंटू r. ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले हम फर्स्ट केस के लिए हम देख लेते हैं कि क्या होगी वैल्यूज. ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हमारे पास व्हेन वी इमर्ज इनटू अ वाटर, यानी कि हमें जो है कैपिलरी राइज निकालना है. ठीक है, कैपिलरी राइज निकालना है. ठीक, तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है. h इज इक्वल टू 2, वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.073 इंटू
कॉस थीटा कितना है 0, तो 1 हो गया अपॉन, अब हमारे पास डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है 9.998 और वेट कितना गिवन होगा, स्पेसिफिक वेट 9.81 इंटू रेडियस कितना गिवन है, यहाँ पे रेडियस इसका कर लेते हैं हम लोग, रेडियस के बदले हमने डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे इंटू 2 और कर दीजिए और यहाँ पे हम डायमीटर लिख लेते हैं, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर -3 सॉरी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा आंसर, वो होगा 7.46 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर और इन केस ऑफ mm 7.46 इन mm, ठीक है। तो ये हमारा कैपिलरी राइज निकल आया, ठीक। अब फर्स्ट केस तो सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस सेम चीज के लिए हमें मरकरी के लिए निकालना है। फॉर मरकरी में अगर हमने डिप किया है तो क्या होगा, स्पेसिफिक यहाँ हमें पे मरकरी के केस में हमें मरकरी की डेंसिटी नहीं दे रखी है, ठीक है, मरकरी की डेंसिटी नहीं दे रखी है। अब डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी, तो मरकरी की हमें डेंसिटी नहीं गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मरकरी की डेंसिटी होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या होती है 13.6 इंटू 1000 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी इसकी आ गई कितनी 3600, ठीक है। यहाँ पे हमें डेंसिटी मिल गई तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू सरफेस टेंशन 0.51 इंटू कॉस 130 डिग्री अपॉन ये 13600 इंटू हमारे पास 9.81 इंटू आर कितना गिवन है, आर कितना गिवन है 4 इंटू 10 टू पावर -3। अब यहाँ मैंने डायर रखा है इसलिए इंटू 2 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से जो हमारा h की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव टर्म में आएगी, नेगेटिव टर्म में आएगी। क्योंकि नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि cos 130 की वैल्यूज हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2.46 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर और अगर हम mm में इसको चेंज करेंगे तो होगा -2.46 mm और ये जो नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो न्यूमेरिकल थे, बाकी डिफरेंट केसेस के लिए भी मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगी जब मैं एक साथ कंबाइन करा के न्यूमेरिकल कराऊंगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।